बिल्कुल निकल गया हो अगर? No Okay, problem, let's start with the chapter reproduction in animals. तो क्लास 8 रिप्रोडक्शन जब एनिमल्स में हम पढ़ते हैं या रिप्रोडक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं तो एक रिवीजन ले लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब है फिर से बनाना। अब बनाएंगे किसको? अपने जैसे कोई तो बनाएंगे दोबारा से ना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है फिर से अपने जैसे को बनाना। और ये एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है। दिस बेसिक लाइफ प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज रादर देन एन इंडिविजुअल, है ना? तो इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल. सो if an individual do not reproduce, he or she will not die out of it, right? So reproduction essential है पर species level पर, organism level पर ये इतना important नहीं, right? अभी रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर जाते हैं कि टाइप्स ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कोई बता सकता है मुझे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? Sexual and Asexual and sexual. Asexual and sexual. कुछ स्टेप्स देखते हैं पहले. व्हाट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स. पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा रिप्रोडक्शन के लिए. रेप्लिकेट करेगा मतलब डबलिंग हो जाएगी. फिर जब डीएनए डबल हो जाएगा तो सेल डिवाइड कर जाएगा और सेल डिवाइड करके फॉर्मेशन होगी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की और इससे नए इंडिविजुअल्स पैदा होंगे. ओके, नाउ टुडे आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की और वो भी मेनली हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. As if the name indicates, asexual mode of reproduction. Asexual, one is asexual, another is sexual. What do you think, Arnab, is the difference between the बिल्कुल basic difference between asexual and sexual? Ma'am, in sexual we need two parents, and in asexual one can only Okay. reproduce of its own. As Arnab has said the very right thing, sexual needs two parents. So what the two parents are? Actually, these two parents are two sexes. What are the two sexes, Skandgupta? Ma'am, male and female. Male and female. Saumil Singh, what do you think is the work of the male sex? To form sperms. Okay, to form sperm, that's right. And what is the function of female gamete? To form eggs, ovum. Okay, that's okay. ये दोनों ये बनाते हैं. But what do you think is the difference between the two? इस तरह से आप बता रहे हो तो that is like they are forming their respective gamete. तो male male gamete बनाएगा, female female gamete बनाएगा. लेकिन और क्या difference है? हाँ, श्रेया, would you like to say something regarding this? मेल क्या करता है हमेशा? मेल गैमीट को क्या करता है वो? Mom, it will transfer it to the female body. हाँ, ये क्या करता है? देता है. तो मेल जो होता है वो डोनर होता है, देता है वो मेल गैमीट को. किसको देता है ये मेल गैमीट को? फीमेल, राइट? सो दिस वाज इट दैट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें दो सेक्सेस रिक्वायरमेंट पड़ गई. पेरेंट्स दोनों अलग अलग सेक्सेस के. एक है मेल पेरेंट और एक है फीमेल पेरेंट. मेल पेरेंट अपना गैमीट जो है वो ट्रांसफर कर देगा फीमेल को और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, राइट? लेकिन जब इवोल्यूशन हुआ होगा, जब पहले ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई होगी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होना शायद मुमकिन नहीं था. इसीलिए पहले देखा बिना सेक्स के रिप्रोडक्शन, यानी organisms were not divided into male and female, right? तो sexual माने male and female, asexual माने no male no female, right? यानी सब एक जैसे हैं. तो जब सब एक जैसे हैं, that means to say it is asexual without involvement of any sex, right? What do you think is the advantage of this process? Amok Garg, would you like to say something regarding this? You unable to talk? Okay, asexual reproduction is really fast, as Kosha has written in the chat box. Yes, it is faster. What do you think is the reason that it is so very fast, Kosha? Because
It only requires a single parent. That's It why. requires only a single parent. You know that when you talk about sexual reproduction, then it do fuss about. It needs two of them. The two of them needs to be mature together. The two of them needs to be producing gametes. The two of them needs to be fertilizing, right? So all the conditions need to be viable or suitable. इतने सारे कंडीशंस का ठीक बैठना लगना इतना आसान काम नहीं होता है. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है भैया, उसी पेरेंट ने रिप्रोड्यूस करना है, तो किसी और पे डिपेंडेंसी ना होने की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले काफी फास्ट है, सिंपल है, फास्ट है, और इसीलिए ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. एक पेरेंट जो एक पेरेंट है, उस एक पेरेंट को कोई सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें केवल होगा माइटोटिक डिवीजन. सो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू नो दैट व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस? हैव वी टॉक्ड एंड डिस्कस्ड रिगार्डिंग माइटोसिस एंड मियोसिस? राइट, Yes, Amol, ma'am. you have written this. Have this. हाँ Somil, yes. Yes, ma'am, we have. We have discussed regarding mitotic and meiotic division. तो asexual reproduction का मतलब है एक पेरेंट है, वो एक पेरेंट जो है वो डिवाइड करे. मान लो मैं अपना यहाँ पे पेन दिखाती हूँ आपको. हाँ, ये मेरा एक पेन है. कैन यू सी माई पेन हियर? Yes, Yeah. ma'am. This is one pen. Let us say this is an organism. Now this organism is dividing, and when this organism divide, then it give rise to two, right? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ने दो बना दिए. कैसे हुआ? ये जो सिंगल ऑर्गेनिज्म था, इस सिंगल ऑर्गेनिज्म ग्रो करा. एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट डीएनए कंटेंट और बाकी की कंटेंट क्या हो जाएगी? डबल. तो ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये एक सिंगल सेल है. ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसने अपनी अंदर की सभी कंटेंट को डबल करा, स्पेशली डीएनए. डबल कर लिया तो बड़ा हो गया, है ना? डबल कर लिया तो ये बड़ा हो गया. अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अब ये एक बॉडी में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ये अब अपनी बॉडी को, अभी तक तो इसने अपना डीएनए कंटेंट डबल किया था, अब ये अपनी बॉडी को खींच तान के दो पार्ट्स में क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर दे रहा है, ऐसे कर. ठीक है. और इस तरह से अल्टीमेटली ये एक ऑर्गेनिज्म, ये एक सेल डिवाइड कर देगा दो सेल्स. अब आपको क्योंकि याद होना चाहिए कि आपने माइटोटिक डिवीजन पढ़ा है, तो क्या ये माइटोसिस नहीं लग रहा है? Isn't it mitosis? Yes, ma'am. Yes. ma'am. So one very important thing, and we should write a question on this, that in unicellular organisms, cell division is the mode, is the way of reproduction. Explain. Write down the question that in unicellular organisms, cell division is a way of reproduction. Explain. Okay? Got it? Yes, हाँ ma'am. guys, clear है? You have to do this question before the next class, right? So let us proceed with this. तो भाई लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास बहुत लंबा चौड़ा बॉडी तो है नहीं. लंबा चौड़ा बॉडी होने का ना होने का मतलब ये है कि उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड चीज नहीं है. हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा उसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसके पास कैपेसिटी होती है गैमीट्स बनाने की. यानी गैमीट बनाने का मतलब ये स्पेशल सेल बनाता है रिप्रोडक्शन के लिए. तो वो स्पेशल सेल इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी बॉडी वेल डेवलप्ड है, उसकी बॉडी के पास बहुत सारे सेल्स हैं, जिनमें से कुछ सेल्स को वो एक काम दे देता है कि भाई तुम रिप्रोडक्शन में हेल्प करो. समझ रहे हैं आप मेरी बात? Yes, ma'am. गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes, हमारे ma'am. जैसा बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा मल्टी सेलुलर बॉडी, जैसे एक बड़ा सा एमएनसी है, तो वो बड़ा सा एमएनसी जो है उसके पास सब काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, है ना? तो जैसे उसके पास मार्केटिंग अलग होगा, सेल्स अलग होगा, एडवर्टीजिंग अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा, ऐसी उसका एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा. लेकिन एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है 100-150 लोगों का, उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट होना पॉसिबल है? No, ma'am. बताओ. नहीं No, है ma'am. पॉसिबल.
बिल्कुल ऐसे ही जो छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास थोड़े से सेल्स हैं या एक ही सेल है, वो उस एक सेल में डिवीजन कैसे कर देगा? उस एक सेल से उसको सारे काम करने हैं, तो कोई स्पेशलाइज सेल नहीं बना सकता वो प्रैक्टिकली। एक रिप्रोडक्शन के लिए वो एक अलग से सेल बना दे, ये उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे जरूरी काम, तो वो रिप्रोडक्शन भी अपने उन्हीं एग्जिस्टिंग सेल्स की मदद से कर लेता है। बात समझ में आई? Yes, ma'am. एकदम क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बिल्कुल बेसिक बात है, हमें ये पता लगना चाहिए कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्या लगता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनका इसको एडवांटेज क्या होता है, या कैसे ऑर्गेनिजम्स इसको शो करते होंगे? कोशा शर्मा। कोशा शर्मा, कैन यू काइंडली स्पीक or you are unable to? हाँ बच्चे, Ma'am, can you repeat? what is the advantage of doing asexual reproduction over sexual reproduction? So as we talked about, it is very fast. It is very fast, so the advantage for that organism that it is really quick. And let's take an example of bacteria such as E. coli, है ना? तो E. coli have a doubling time of round about 18 to 20 minutes. So E. coli 18 से 20 मिनट में डबल हो जाता है नंबर में. Very good, Kosha. Next is to Kush. Kush, can you hear me? Yes, ma'am. कुछ आपको क्या लगता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें डबलिंग टाइम जल्दी होता है, मतलब तेजी से प्रोड्यूस करता है, और कोई एडवांटेज है? मतलब कोई ऑर्गेनिज्म क्यों करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Ma'am, because it is very simple and no organs are required. नो ऑर्गन, सर, दैट्स इट. कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सेल नहीं है, बहुत सिंपल है ना? दैट्स व्हाट यू मीन ना कुश? इट्स वेरी सिंपल. Yes. तो बहुत फसी नहीं है, बिल्कुल जो मिल रहा है उसी से काम चला रहा है, बहुत सिंपल है. तो सिंपल है, क्विकली होता है, ये दो एडवांटेजेस है डेफिनेटली. और कोई शेयर करना चाहेगा कोई एग्जांपल या मतलब कोई एडवांटेज एसेक्सुअल Ma'am, it रिप्रोडक्शन का? saves energy and time. It saves energy and time. हाँ, मतलब it saves energy and time in respect of like कि it do not fuss around making reproductive organs or reproductive gametes, right? हाँ, in Yes, this way ma'am. we can say this. अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे श्रेया. श्रेया, Yes. ये बताओ कि एक डिसएडवांटेज बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का नुकसान क्या है? कोई नुकसान है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुत सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो क्या नुकसान है इनको, ये क्यों करते हैं वो? ओके, Saumil, would you like to answer this? Ma'am, because they have only one cell, so they can't categorize their cells for Into a different kinds of specific cell. नहीं, that's answer. okay, that is okay. What I'm asking is like, इस वजह से उनको डिसएडवांटेज क्या होता है? मतलब एक अमीबा है, And then there will be many offsprings and they can fight for air, food, Food. matlab nutrients. okay, there will be many offspring and they will fight for their food. So asexual reproduction give rise to many organisms at a time, and which may lead to overpopulation, and naturally overpopulation may lead ultimately to the extinction of that particular population, and due to fight Yes, for ma'am. survival. It can be, yes, definitely it can be one of the reasons. Anything else from your side, guys? What do you think is the next thing that we should go on? Like कि एक अमीबा है, वो अमीबा जो है सिंपली फिजन करके अलग हो गया, सही है? तो ये जो अमीबा है, हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट जो होता है उसको कहते हैं हम क्लोन, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट की. तो अब इसको हिंट समझ लो मेरी. सौमिल सिंह, आपको क्या लगता है, जेनेटिकली सिमिलर होने का फायदा होगा या नुकसान होगा? मैम, नुकसान होगा क्योंकि लेस वेराइटी क्या होगा नुकसान, बताओ. होंगी. हाँ, मैम, लेस वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे अगर लेस वेराइटी है तो क्या होगा, बताओ. देन मैम एक्सटिंक्शन के ज्यादा चांसेस हैं. हाँ, बिल्कुल सही बात है. क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो सौमिल इसको? बिल्कुल ठीक पकड़े हो आप, एग्जैक्टली राइट जगह है, बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस.
देखो अच्छा अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ। मैम मान मैं लीजिए, एक्सप्लेन करूँ? हाँ स्कंद यू, मैम हाँ जैसे काइंडली गो ऑन। मैम कोई मैम डिसीज होता हो मैम, ह्यूमंस को होता हो तो मैम सारे ह्यूमंस को हो जाएगा ऐसे, और मैम धीरे धीरे सब मर जाएंगे। अगर मैम वो डेडली बिल्कुल डिसीज है तो बिल्कुल मैम बिल्कुल एक्सटेंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसे भाई स्कंद ने कहा यहाँ पर कि अगर डिजीज होगा पेरेंट को तो सब बच्चों को आगे की डिजीज होगा, है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांस है कि हो सकता है डिजीज ना भी हो, क्योंकि वहां पर वेरिएशन क्रिएट हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर क्लोन है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो पेरेंट्स की जो बीमारियां हैं वो आगे कैरी ऑन होंगी, और इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो वीक होते जाएंगे, राइट। तो एक डिसएडवांटेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो ये है कि जेनेटिक रिलेटेड जो जीन रिलेटेड डिजीज होते हैं, जेनेटिक्स रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, वो तेजी से फैलते हैं, और इसीलिए ये जो इनकी प्रोजेनीज होती हैं ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होती है, धीरे धीरे वीक होती जाती हैं, और इस तरह से वीक प्रोजेनीज जो होती है वो आगे नहीं चल पाती। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. आई होप दैट ये बात सबको क्लियर हो गई है। अगर नहीं हुई तो आप Yes. चैट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। All clear, ma'am. All clear, okay, great. So let's go on with this term that is called fission. फिजन एक तरह से ये है कि एक बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम यहाँ पर अभी अमीबा का एग्जांपल लेंगे, जनरली वही लेते हैं। तो मान लीजिए अमीबा की बॉडी है, अभी मैंने दिखाया भी था, अमीबा ने खाया पिया, बड़ा हो गया, ग्रो कर गया, ग्रो करके वो डिवाइड कर रहा है। तो पहले उसकी डीएनए कंटेंट डबल हुई, है ना, अमीबा की डीएनए कंटेंट डबल हुई। और डीएनए कहाँ होता है बताओ, रेज योर हैंड्स। डीएनए कहाँ होता है ऑर्गेनिज्म का, किस जगह होता है? हाँ अर्नब बोलो। Ma'am, nucleus. न्यूक्लियस में होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस का साइज भी डबल हो जाएगा, है कि नहीं है? अगर ये न्यूक्लियस है तो Yes, न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कि डीएनए हो गया उसका डबल। तो अब जब डीएनए डबल हो गया, न्यूक्लियस का साइज डबल हो गया, तो सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस। क्या डिवाइड करेगा सबसे पहले बच्चों? Nucleus. न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो ये डिवीजन जो है न्यूक्लियस का कहलाता है कैरियोकिनेसिस। व्हाट डू वी कॉल इट? कैरियोकिनेसिस। कैरियो माने न्यूक्लियस, किनेसिस माने डिवीजन। So karyokinesis occurs when there is a doubling in the DNA amount. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's मैम great. तो कैरियोकिनेसिस होता है पहले, यानी न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। अभी जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, तो न्यूक्लियस डिवाइड करके मतलब, जैसे आपने सुना है ये कहावत हिंदी में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, तो थर्ड स्टेज में यहाँ बना दी। तो थर्ड स्टेज में आप ये समझो कि अब ये इतनी बड़ी हो गई न्यूक्लियस की, डिवाइड हो गई, दो न्यूक्लियस बन गई। तो आप एक बताओ, एक सेल की दो न्यूक्लियस, यानी एक सर में दो दिमाग, कैसे काम होगा? इसकी सुनू कि उसकी सुनू, चलेगा ऐसा सेल? no, No, ma'am. ma'am. तो क्या करना No, पड़ेगा? ma'am. इसे Divide. अब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो स्टेज 3 में हमारे पास कैरियोकिनेसिस हो चुका है, और स्टेज 4 में अब होगा साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस को कौन एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज साइटोकिनेसिस? मैम जैसे साइटोप्लाज्म में जब Ma'am, division डिवाइड of करता है तो Division of cytoplasm. cytoplasm. Division of राइट, वेरी cytoplasm. गुड, सही है अमोक। साइटोकिनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। स्कंद सही था बिल्कुल। तो पहले कैरियोकिनेसिस हो गया, मतलब कि भाई हमारा न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, और अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होके क्या हो जाएगा? अब एक तुम लो और एक मैं लूं, और इस तरह से एक से दो सेल बन, ठीक है। अमीबा शो करता है सिंपल फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब एक से दो बनना, बाइनरी मतलब बाइनरी नंबर दो। बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा में, वो कहीं से भी हो सकता है, मतलब किसी भी प्लेन। सिंपल बाइनरी फिजन किसे कहते हैं? जो किसी भी प्लेन में हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लंबा हो जाए, चौड़ा हो जाए, कहीं से भी हो जाए। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है यूग्लिना में। तो अगर मैं यहाँ पर यूग्लिना बनाऊंगी ना बच्चों, तो मैं क्या करूंगी, देखो ये रहा यूग्लिना, और यूग्लिना में जब बाइनरी फिजन होगा तो ये यूग्लिना जो है ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली लंबाई में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इसे कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे ही पैरामीशियम में होता है ये ट्रांसवर्स, और सिरेटियम में होता है ओब्लिक, राइट? ओके Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. गेटिंग माय पॉइंट?
Yes. Yes, ma'am. ma'am. अब एक और कंडीशन आती है, अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन में फंस गया है कोई, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मान लो हमने यहाँ पर बात करी अमीबा की या प्लाज्मोडियम की। अच्छा बताओ प्लाज्मोडियम, कौन से प्लाज्मोडियम की मैं बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। बताओ कौन सी बीमारी कॉज करता है? बताओ मैम मलेरिया, Malaria. मलेरिया, ये कौन है? फंजाई है, प्रोटोजोआन, है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआन। So plasmodium is a protozoan which exists in the salivary glands of female anopheles. So when this female anopheles bites any normal person, right? So it may transfer this protozoan whose name is plasmodium, and then it goes into the bloodstream of the normal person. There it grows on the blood of that person. तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट का काम होता है अपने होस्ट की बॉडी में जाकर उसकी बॉडी से फूड चुराने का। तो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थोड़े प्रोटेक्शंस होते हैं, तो हमारी बॉडी में भी होंगे, अदरवाइज भी होते हैं। तो जब प्लाज्मोडियम एकदम से जाएगा तो एकदम से उसका कोई स्वागत तो करेगा नहीं भाई कि आइए हम आपको तिलक लगाएं, आइए स्वागत है, करेगा या? No, आपकी ma'am. बॉडी वेट कर रही थी उसका कि आइए आइए स्वागत है वीआईपी जी, नहीं ना, वो तो लात मार के बाहर निकालने की कोशिश करेगी प्लाज्मोडियम को, हाँ या ना? यस मैम, है Yes, ना? ma'am. तो इस समय अब आपका सिस्टम जो है लड़ रहा है इससे, प्लाज्मोडियम से। तो आपके सिस्टम में तरह तरह के इम्यून सिस्टम के पास तरह तरह की चीजें हैं जिनके द्वारा वो पैरासाइट को रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर प्लाज्मोडियम जो है वो आपकी बॉडी में जाए और उसको एग्जिस्ट करना मुश्किल होगा, तो ऐसे में प्लाज्मोडियम क्या कर सकता है? प्लाज्मोडियम जो है अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना सकता है, और सिस्ट का मतलब है कवरिंग, कोट। और अभी वो डिवीजन चालू रखेगा, 1 के 2 बन गए, फिर ये 2 के 4 बन गए, फिर 4 के 8 बन गए। जब बाहर की फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तब ये कोट हट जाएगा और ये प्लाज्मोडियम बाहर रिलीज हो जाएगा। तो मल्टीपल फिजन का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशंस में जब अंदर ही डिवीजन होता रहे बिना रिलीज करे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है? ओके, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन हियर? यस इसको मैम, ले रहने देना, दूसरी भी। Yes. ma'am. Okay, let's look on this difference between binary and multiple fission. Binary fission जो होता है इसमें कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं होता बच्चों। प्रोटेक्टिव कोट कह सकते हैं इसे, वॉल कह सकते हैं, सिस्ट कह सकते हैं। जबकि मल्टीपल फिजन में एक प्रोटेक्टिव कोट बनता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस। फुल्ली मैच्योर इंडिविजुअल 2 डॉटर इंडिविजुअल्स बनाते हैं, यहाँ कई सारी बनाते हैं, मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, राइट? और हर डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? पेरेंट सेल ब्रेक करके बहुत सारे इंडिविजुअल्स को निकालता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है? पेरेंट सेल ही डिवाइड करके 1 से 2 बन जाता है ना? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. So binary fission and multiple fission are the 2 important parts which have been mentioned in a package as well. आप लोगों ने पैकेज भी एक बार देखना चाहिए इसके लिए। क्लास के बाद आप लोग एक बार गो थ्रू करिएगा। यहाँ मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा रही हूँ। कुछ पूछ रहा था क्या कोई बेटा? मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम अमीबा मैम बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों करता है? दोनों दिखाता है। मैम ऐसे के मैम, अनफेवरेबल कंडीशंस हो ना बेटा। अच्छा बेटा ओके ऐसा होता है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन इन व्हिच इट हैज बीन पुट ऑन। इफ द कंडीशन इज नॉट फेवरेबल आउटसाइड, देन जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो मर जाएगा, तो रिप्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है। तो इतने छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को भी पता है कि वो कौन सा काम करे जिससे उसे नुकसान ना हो। हाँ, अपने बच्चों को वो भी बचा रहा है। तो मैम हर ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से दोनों फिजन कर सकते हैं? नहीं, हर ऑर्गेनिज्म फिजन नहीं करता है, पर हाँ हर ऑर्गेनिज्म जो होता है एडजस्ट जरूर करता है। श्रेया, आप और हम में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म पर एनवायरनमेंट का बहुत गहरा असर पड़ता है ना? आपने मैम सुना होगा। हाँ मैम, तो इसका मतलब जो बाइनरी फिजन करता होगा मल्टीपल फिजन भी करता होगा? नहीं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैम अनफेवरेबल कंडीशंस में वो फिजन कैसे करेगा बाइनरी फिजन करने के लिए? अगर इतना सारा प्रोटेक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म शो करेगा तो वी विल हैव द पाइल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? हाउएवर कोट फॉर्मेशन जैसे बैक्टीरिया भी करता है, एंडोस्पोर फॉर्म करता है, बट अलग अलग तरीके से होता है। कोट फॉर्मेशन के बाद मल्टीपल फिजन ही करे ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है? वो एक कोट
बनाता है, बहुत ही मजबूत कोट होता है, एंडोस्पोर फॉर्म करता है। तो उस कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया है वो चुपचाप डॉर्मेंट पड़ा रहता है, डिवाइड नहीं करता रहता है। कहीं कहीं मल्टीपल फिजन भी दिखाते हैं बैक्टीरिया, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीपल फिजन। ठीक है, ओके मैम। तो ये रहा पेरेंट अमीबा स्टेज नंबर 1। दूसरे स्टेज में क्या हुआ, डबलिंग हुई जब डीएनए की, तो इलोंगेशन हुआ न्यूक्लियस का। अब क्या हुआ, एक ग्रूव डेवलप कर गई साइटोप्लाज्म में, एक ग्रूव डेवलप कर गई जिससे साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी शुरू हो जाएगा। पहले हुआ डिवीजन किसका, न्यूक्लियस का। यहाँ पूरी तरह से दिखा रखा है, पहले होगा किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का, और फिर होगा डिवीजन साइटोप्लाज्म का, और फिर बनेंगे 2 डॉटर सेल्स। ये है सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब देख लेते हैं एक पैरामीशियम का ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स फिजन यानी ट्रांसवर्स लाइन के द्वारा ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स। पैरामीशियम जो है इसे स्लिपर एनिमिक्लूल भी कहते हैं। तो ये स्लिपर शेप्ड होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होती है, एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो। एक्चुअली जो मैक्रो न्यूक्लियस होती है, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन, ओनली माइक्रो न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन। तो यहाँ देख रहे हैं आप, पर डिवाइड दोनों ही कर रही है, ये 2 न्यूक्लियस है, ये बड़ी वाली है मैक्रो और ये छोटी वाली है माइक्रो। ठीक है, तो ये दोनों ही एलोंगेट कर रही है, यानी कैरियोकिनेसिस हो रहा है। जब कैरियोकिनेसिस हो गया तो यहाँ पर ये एक बीच में दीवार बन गई, ट्रांसवर्स दीवार बन गई, ट्रांसवर्स वॉल बन गई, ये हो गया साइटोकिनेसिस। समझ आ गया? Yes, Yes, हाँ बच्चों, ma'am. क्लियर एकदम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, देखो ऐसा है, सीलिएटेड प्रोटोजुअन्स जैसे होते हैं। हमने अभी प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजुअन की बात करी थी, है ना? तो प्लाज्मोडियम एक पैरासिटिक प्रोटोजुअन है, ये पैरासिटिक नहीं होता। पैरामीशियम, अमीबा भी पैरासिटिक नहीं होता। तो कई तरीके के प्रोटोजुअन्स होते हैं, ये सब सिंगल सेल्ड होते हैं। तो यहाँ पैरामीशियम जो है वो भी अपनी बॉडी को क्लीव कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन कैसे डिवाइड कर रहा है, किसी भी प्लेन में नहीं कर रहा, बस ऐसे करके एक ट्रांसवर्स वॉल, जैसे आलू के पकौड़े बनाने हैं ना, तो उसके लिए स्लाइस कर रहे हैं हम आलू। करे किसी ने स्लाइस आलू? यस मैम। चलो गुड, एक आध तो काम करता है, बाकी सब सिर्फ मुंह खोल के काम करते हैं। तो जब स्लाइस कर रहे हैं हम आलू, तो वो हम कैसे कर रहे हैं, ट्रांसवर्सली ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे ये कैसे बनेगा, ये किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडल किसी भी प्लेन में ऐसे नहीं होगा, केवल एक ट्रांसवर्स वॉल बनेगा, उसके द्वारा पैरामीशियम 2 हिस्सों में बट जाएगा, 2 ऑर्गेनिज्म उसमें बन जाएंगे। समझ आ गई बच्चों बात? Yes, ma'am. अभी क्लियर है ना एकदम? यस। एंसिस्टेशन जैसे दे रखा है, एंसिस्टेशन का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। एंसिस्टेशन का मतलब ये है कि जो अमीबा है या और कोई ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम है, वो क्या करेगा, वो अपने आप को अंदर एक कोट में प्रोटेक्ट कर लेगा और ये सिस्ट के अंदर वो रिप्रोड्यूस करेगा। सिस्ट एंड स्पोर्स जो हैं इनके अंदर बनेंगे, बैक्टीरिया में भी बनते हैं, प्रोटोजोन्स में भी बनते हैं, जो कई सारे न्यूक्लियाई बनते हैं, वो सारे छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के द्वारा कवर्ड होते हैं। और उसके बाद में जब ये सिस्ट ब्रोक होगा तो सारे डॉटर अमीबा, जैसे यहाँ पर मल्टीपल फिजन दिखाया अमीबा में, ऐसी आप बाकियों में भी दिखा सकते हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? मैम बट Yes, इस ma'am. डायग्राम के हिसाब से साइटोकिनेसिस तो नहीं हुआ। हाँ बच्चे बोलो बेटा, ये साइटोकिनेसिस नहीं हो रहा, देखो कैसे हो रहा है। साइटोकिनेसिस बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। इफ यू लुक एट दिस, दैट व्हाट दे हैव रिटन हियर, लाइक कि न्यूक्लियस डिवाइड हुई। जब न्यूक्लियस डिवाइड हुई तो हर न्यूक्लियस के पास छोटा छोटा ये जो है ना, ये साइटोप्लाज्म तो इकट्ठा हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि साइटोप्लाज्म पूरा 1 और 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, ऐसे नहीं हो रहा। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ उसके लिए थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है। समझे? गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, let's come on to this next way of मैम yeast एक मिनट ऊपर introduction स्क्रॉल कर दीजिए। after this. Okay, Okay. I'll be doing it. Let's take an example of here yeast. Yeast जो है, it is the only unicellular fungi and it has this asexual method of reproduction called budding. तो budding artist कहते हैं ना, I'm a budding artist. Budding मतलब जो grow कर रहा हूँ, अभी growing की stage में। बडिंग में ये अंतर है कि बडिंग में एक अनइक्वल डिवीजन होता है पेरेंट का। अभी जैसे पहले मैंने अभी आपको अमीबा का बाइनरी फिजन दिखाया, तो उसमें अमीबा जो थे, पेरेंट पिताजी जो थे, वो 2 बच्चों में डिवाइड हो गए। खुद पेरेंट 2 बच्चों में डिवाइड हो गया। इसका मतलब है जो पेरेंट है वो हमेशा पेरेंट आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं हम कि जो बाइनरी फिजन शो करते हैं वो इमॉर्टल है।
Yes, ma'am. Write down a question and explain it as well, that the organisms which show binary fission are immortal. Explain. Or यहाँ पर you have to draw a diagram of binary fission as well. So the question is, organisms which show binary fission are immortal. Explain and draw the diagram of binary fission as well. Clear hai? We have to draw the diagram again. Yeah. Again, what do you mean by again? This is the first time you will be drawing it for me. No, we have already drawn it. You मैम have वो तो already drawn? क्रोमोसोम्स का ड्रॉ किया था, meiosis no. और mitosis No, का. no, that is something else. It's something else, right? You should be knowing the difference between the two. Budding. तो budding में क्या होता है? Budding में और binary fission में क्या अंतर हो गया? कि budding में जो parent था, वो parent एक parent था और ये एक parent ही divide करके दो बन गया. तो parent की identity lost है. लेकिन budding में ऐसा नहीं होता. Budding में parent की identity lost नहीं होती है, right? एक तो इसकी parent की identity lost नहीं होती है और दूसरा ये एक अनइक्वल डिवीजन है, अनलाइक बाइनरी फिशन. बडिंग यूनी और मल्टी सेल्युलर में हो सकता है. इसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ हो जाती है. जैसे मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको. यीस्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंजाई, और ये सिंपलेस्ट फंजाई क्या करती है, ये हेल्प करती है फर्मेंटेशन में. आपने ब्रेड खाई, आपने वो मैदा और वगैरह से भटूरे वगैरह जो बनाते हैं हम, वो हम यीस्ट के फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हैं. तो यीस्ट फर्मेंटेशन के द्वारा कैसे ग्रो करता है, बडिंग देखिए कैसे करता है. यीस्ट क्या करता है, ये देखिए, ये यीस्ट का सेल है, ये इसकी न्यूक्लियस है. तो यीस्ट की बॉडी जब ये ग्रो कर रहा है तो इसके में से ये एक एक्सोजेनस बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ निकल आई, इसे कहा हमने बड. और यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड कर रही है पर अनइक्वल डिवीजन. एक छोटी न्यूक्लियस है, ये वाली छोटी है, स्मॉल है, और दूसरी वाली बड़ी, राइट. इसके बाद में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड करने लगा, राइट. अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करके यहाँ पर बड बन गई. ये बड नंबर 1 हुई. अब इसी बड नंबर 1 पे बड नंबर 2 हुई, और इस तरह से बडिंग स्टार्ट हो गई. तो चेन ऑफ बड्स भी बन जाते हैं. तो यीस्ट की एक यीस्ट देखेंगे तो आप उसमें पूरी ढेर सारे यीस्ट आपको बडिंग करते हुए आपस में कनेक्टेड नजर आए. गॉट माय पॉइंट? मैम सिर्फ पेरेंट ये सेल ही बड करता है कि डॉटर्स भी कर सकते हैं? नहीं, डॉटर हर एक कोई कर रहा है. देखो ऐसा है, मान लो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरेंट ने ये वाला डॉटर बनाया और ये डॉटर नीचे टपक गया, है ना, अलग हो गया. अलग हो गया तो चेन नहीं बनेगी, ये भी बड करेगा. यहाँ पर इसके ऊपर दिखाया है, तो नेचुरली इसका मतलब ये है कि जो डॉटर है, ये डॉटर यीस्ट है, ये बड कर रहा है ऊपर. सही है, ये डॉटर का डॉटर है, पेरेंट का डॉटर नहीं है. ठीक है, ओके, यस मैम. ऑलराइट. तो बडिंग में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ है जिससे कि डिवीजन हो रहा है. इसी तरह की एक बडिंग होती है स्पॉन्जेस में, और इसे कहते हैं हम एंडोजेनस बडिंग. एंडोजेनस मतलब ये बडिंग बाहर की जगह अंदर की तरफ होती है. तो फाइलम पॉरीफेरा जो सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं एनिमल किंगडम के, इनमें ये एंडोजेनस बडिंग होती है, यानी अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर होती है. इन्हें कहते हैं जेम्यूल्स. क्या कहते हैं बच्चों इन्हें? जेम्यूल्स. Gemmules. तो अभी एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग. डिफरेंशिएट बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फिजन. क्वेश्चन नंबर 3. डिफरेंशिएट बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फिजन. अभी नेक्स्ट पर आते हैं हम, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो, लंबा लंबा स्ट्रक्चर, वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं. ज्यादातर फंजाई करते हैं ये. तो हम यहाँ देखते हैं कि स्पोर्स क्या होते हैं. स्पोर्स कुछ स्पेशली एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो ये बना रहे हैं. जैसे यहाँ पर इन्होंने एक ब्रेड मोल्ड दिखाया, ये है एक राइजोबियम नाम का फंजाई. आप लोगों ने कभी बासी ब्रेड देखी है, स्टेल ब्रेड? जैसे मम्मी ने आपकी ब्रेड निकाली हो तो आपने कहा ये खराब है मम्मी, ये देखो इसमें क्या हो रहा है. देखे हो कभी? ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है उस पे, यस मैम. है ना. ये जो स्टेल ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आते हैं आपको, वो एक्चुअली में राइजोबियम, जिसका कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड. ये ब्रेड मोल्ड जो है क्या कर रहा है, इस ब्रेड के ऊपर कैसे ग्रो कर रहा है ये देखते हैं. हाँ बेटा. मैम राइजोबियम या राइजोबस?
क्या बेटा? मैम Oh, आपने sorry, बताया था sorry. I'm so sorry. rhizobus. Yes, rhizopus. I'm so sorry. It is rhizopus. You are right. That was the slip of my tongue. It is rhizopus, right? It is rhizopus जिसको हम bread mold कहते हैं, और rhizopus का दूसरा साथी है pin mold, mucor. Rhizobium क्या होता है? Ma'am, मैम these are लेग्यूम्स में पाई nitrogen fixing Nitrogen bacteria. fixing Rhizobium bacteria. bacteria होता है, fungi नहीं होता, right? That was actually similarly sounding word में कई बार बोलने में हो जाती है. तो it is rhizopus is a bread mold. Bread mold है ये. तो bread mold जो है bread के ऊपर कैसे ग्रो करता है? ब्रेड के ऊपर ऐसे ग्रो कर रहा है कि ब्रेड क्या है? ब्रेड उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है. तो मान लो राइजोपस का कोई स्पोर आके इस ब्रेड के ऊपर गिरा, उसे सारी सूटेबल कंडीशंस मिली, मतलब नमी मिली, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मिला सूटेबल, तो ये ग्रो करने लग गया. ये मैं बना देती हूँ. तो ये एक स्पोर था राइजोपस का. ये राइजोपस का स्पोर ग्रो करा और इससे ऐसे लंबे लंबे धागे, जिन्हें हम कहते हैं हाइफा, निकलने लगे. अब ये कई सारे जो हाइफे हैं, धागे हैं, ये कई सारे हाइफे मिलकर कहलाते हैं माइसीलियम. तो ये कैसे फैल रहा है फंजाई? माइसीलियम के रूप. अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम डिटेल स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है. ये जो इसके ये वाला पार्ट है, इसको हमने कहा हाइफा, और ये हाइफा में से निकल रहे हैं ऊपर ये जो डंडी जैसे हैं, इनको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोफोर्स. और इन स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर ये जो बल्ब जैसे स्ट्रक्चर है, इन्हें कहते हैं हम स्पोरेंजियम, जिनमें से निकलेंगे स्पोर्स. तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो स्पोर है जड़े जमा रहा है, राइजोइड्स जमा रहा है अपनी, और ये राइजोइड्स की मदद से ये फैल रहा है ब्रेड के ऊपर, राइट. अब जब इसमें से स्पोर्स मैच्योर होके गिर रहे हैं आगे ब्रेड पे, तो वहां पर और हाइफा जनरेट हो रहे हैं, और इस तरह से पूरी ब्रेड कैसी हो जाएगी? फंगस के अंडर आ जाएगी. समझ में आई बात? Yes, ma'am. तो मतलब स्पोर्स क्या हैं? दीज आर स्पेशल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, जिनमें सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. थोड़ा इनके प्रोटोप्लाज्म में चेंज आ जाता है. तो ये छोटा सा स्पोर है, ये इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है. जैसे बीज होता है पौधे का, तो बीज जो होता है वो कैसे बनता है? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से. तो स्पोर ऐसे नहीं बना है, पर स्पोर के पास, होल्ड ऑन, स्पोर के पास अपने पेरेंट की सारी इंफॉर्मेशन है, और स्पोर के चारों तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है. तो जब ये स्पोर गिरेगा, तो अगर इसे फूड मिला, वायबल कंडीशंस मिले, तो ये ग्रो करेगा. हाँ बोलो स्कंद, बोलो स्कंद बेटा, बोलो. मैम जैसे मैम ब्रेड पे मैम फंगस मैम आ जाती है, तो मैम उसको सूटेबल कंडीशंस तो मिलती हैं, पर मैम वो आती कहाँ से होगी मैम? अपने आप कैसे? बेटा हवा में स्पोर्स होते हैं. जैसे हम Okay, ma'am. फंजाई की बात करें ना, तो फंजाई इज अ किंगडम व्हिच इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. इसके स्पोर्स हर जगह पाए जाते हैं, पानी, जमीन, हवा, सब जगह, राइट. तो ढेर सारे स्पोर्स इस समय तैर रहे हैं हवा में, आपको मुझे नहीं दिखेंगे. लेकिन अगर वो किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम, जैसे ब्रेड है, आपने ब्रेड मान लो रेफ्रिजरेटर की जगह बाहर रख दी, और बाहर भी ऐसी जगह रख दी जहां थोड़ा डार्क है, नमी रहती है, गर्मी रहती है, तो वो जब स्पोर गिरेगा उस पर, तो वो स्पोर को सारी कंडीशंस मिल जाएंगी ग्रो करने के लिए, और उसमें से हाइफा निकल आए. समझे आप? यस मैम. Yes, ma'am. So that was all for today's class, and we will be discussing further in the next classes.